नाम से जो WORK है, उन्होंने हमें ऐसे स्टेज पर बुलाया। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे और बढ़िया रखे। वर्क का जितना भी कार्य है वो सराहनीय है। मरने वाले सब लोग जिलाए जाएंगे दरबार वफा में, जब एक दिन दौलत का जिनको लोभ नहीं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। तुम ज़मीं वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। कुछ इसी तरह की थीम, इसी सोच के साथ 25 अगस्त 1987 की सुबह अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने आचार्य मौलाना शम्स नवेद उस्मानी साहब की इजाज़त के बाद लाइफ टाइम प्रेसिडेंट के रूप में महज 12 एक्टिव मेंबर्स के साथ मौजूदा वर्क यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज की बुनियाद शांति, सेवा, सहयोग, ज्ञान, न्याय और एकता के प्रिंसिपल्स के साथ डाली। वर्क का पूज्य परमेश्वर, वर्क की जाति मानव परिवार, वर्क का सपना अखंड भारत, वर्क का गौरव हिंदुस्तान, वर्क का संकल्प युग परिवर्तन। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, आसाम, गोवा, उड़ीसा के अलावा विद द एसोसिएट्स ऑफ गाला, यूनाइटेड किंगडम, USA, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत and Oman are the international chapters of World Organization of Religion and Knowledge। जी हाँ वीवर्स, यहाँ आपको बताता चलूँ कि एज अ सोसाइटी वर्क was registered in the year 2001. In the year 2004, the organization registered itself as a charitable trust. In 2016, it started collaboration with an international peace organization, HWPL. During the lockdown, volunteers of work have been relentlessly undertaking relief work for the poor and needy. On June 1st, 2020, work passed a resolution to expand its activities to other spheres of peace and social work like pollution, ecology, water conservation, implanting of trees, or collaborating with अखंड भारत अभियान। सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। मरने वाले
सब लोग जिलाए जाएंगे दरबार वफा में जब एक दिन दौलत का जिनको लोभ नहीं, तोपों का जिनको खौफ नहीं, रंजिश से परे रहने वाले हाथों पे उठाए जाएंगे जब एक दिन आखिर है अल्लाह ब्रह्म शिव राम कृष्ण दुर्गा का होगा एक अक्स, पैगंबर सारे धर्मों के एक साथ दिखाए जाएंगे दरबार। बहुत बहुत शुक्रिया। To learn such open-minded, beyond my religions, and learn from others also. And today I also get this opportunity from HWPL to experience how the Eid are celebrated. So I'm very thankful for having me. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग बहुत थक गए हैं। So let us bring back that energy. So my name is Diksha Ranjan and I am the Deputy Director General of HWPL India branch. So very pleased to meet all of you and I really thank Tariq sir and the entire workers actually. So they have been very dedicatedly working for peace and we have been working together for compassion for many years now. And to be honest, I feel very honored that I got the opportunity to come here today. And we are working together for global peace and for the cessation of war. And so just like you saw that how even work is working for the cessation of war as well, but with compassion. So we are working together in order to cease the war, whatever things what you are watching these days, whatever the chaos is happening, be it because of religion or be it because of any of the misunderstanding. We are trying to seize everything with love, with compassion, with peace. So I hope that with this celebration as well as Women's Wing of Work has organized this, so I'm very grateful. And I know that everyone sitting here has worked really hard, really hard, especially for uplifting all the underprivileged people and educating them. So I hope that we continue to work together for the women's peace, women's empowerment, for youth, and for also the international global peace. Thank you, everyone. That was so inspiring. Thank you, ma'am. So, to renovate our moods, this is the moment we are all waiting. वृक्ष के नाम से जो WORK है, उन्होंने हमें ऐसे स्टेज पर बुलाया। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत दे और बढ़िया रखे। वृक्ष का जितना भी कार्य है वो सराहनीय है। यहाँ बैठे सभी शरीर रूपी आत्माओं को मैं हरिदास बाबा चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज कभी मैंने किए नहीं ज़्यादा और मुझे इतना आता नहीं है। मैं यमुना की सफाई के लिए और यमुना के किनारे प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करता हूँ, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। यमुना इस समय हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
कोई भी धर्म हो, सबके मल मूत्र को इस समय सहन कर रही है। हमें हिंदुस्तान के इस दिल्ली के अंदर विश्व के सभी राजदूत यहाँ पे रहते हैं। कभी भी इस 22 किलोमीटर की यमुना के बारे में कोई नहीं सोचा। मैं आपसे यमुना की सफाई के लिए आप सबसे भीख मांगता हूँ कि आप उसके लिए कुछ सोचें, कुछ करें, नहीं तो यमुना नाले का रूप लेकर जैसे सरस्वती इस पृथ्वी से खत्म हो गई है, ऐसे यमुना और गंगा दोनों हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम जल के लिए तरसेंगे। आज एक छोटी सी बिसलेरी की बोतल हम लेते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार हुआ हमारे सामने हुआ। परमात्मा ने सभी के लिए जल फ्री दिया। कोई भी जल के पैसे नहीं दिए, हवा के पैसे नहीं दिए, दूध के पैसे नहीं दिए। पृथ्वी पर जो आदिवासी है वहां पर कोई टैक्स नहीं है, बड़े आनंद से रहते हैं, सुख में रहते हैं, कोई बीमारी नहीं है। आप अंदाजे लगाइए, हम अपने सुख के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, अच्छी अच्छी चेयर बना रहे हैं। करना चाहिए, ये व्यापार है, लेकिन इतना भी ना करें जिससे कि आने वाले समय में विरासत में हम अपनी संतानों को शायद कैप्सूल के रूप में इन सब चीज देके जाएंगे। मेरी आप